Hello everyone. So this was the article in the Hindu newspaper of today, and this article is basically related to mental health. Now you know that mental health has become an invisible epidemic, even across the world and in India specifically. So recently, in July 2025, Supreme Court gave a judgment in Sukhdev Saha versus the state of Andhra Pradesh that mental health is a part of what? Article 21. Just a day ago, we also discussed about right to information. That was part of which article? Just tell me. Right to information is part of which article? ठीक है. सो दिस मेंटल हेल्थ हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाए. सो दिस इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. और अगर मेंस में क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू आर्टिकल 21 देन यू कैन साइट दिस एज वेल, क्योंकि ये करंट जो भी चल रहा है वो है. सो दिस हैपेंड बिकॉज देयर वॉज a 17-year-old girl who committed suicide. She was a NEET candidate, and you know how many, like, these days काफ़ी सारे suicide की news and all are appearing in the newspaper. That is because of mental health issues children are facing, and they are not capable to handle that level of stress. Even the education का जो भी stress होता है, they are not able to handle that. And what are the further more reasons? We are going to discuss about that in this article. So let's move ahead. So देखो, this is what we are talking about children, but even we talk about ourselves, like you, me, anybody of any age group, but everybody faces a certain kind of mental stress, which which can be termed as they are facing issues regarding to mental health. But there are a lot of issues like social stigma associated with this, because of which people do not talk about it a lot. What kind of social stigma? So stigma, like अगर आप किसी से share भी करोगे that I am facing these kind of issues, they will not take you too much seriously, right? Nowadays हालांकि धीरे धीरे awareness बढ़ रही है, but still there are instances where people will ignore these kind of thoughts which you are sharing with them. So this is the main cause, the society being the main cause, where they are not very concerned about you, about your thoughts, about your mental wellness. They are just very kind of outcome oriented. What are you doing? There is so much of competitiveness in the environment instead of peace and stability. Children are being taught from their very childhood to be competitive. They are like their physical health maybe is being concerned, but their spiritual health, their mental health is not at concern at all. So physical health does not equates to mental health at all. I am just giving a disclaimer here. You cannot say कि अगर आप कोई physical health आपकी अगर अच्छी है, आप मान लो एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हो, मान लेते हैं, yes it may benefit you, but हो सकता है इवन आप ये सब कर रहे हो but you are not at peace in your mind, you are facing certain level of stress, then that is not equals to what? Physical health is not equals to your mental health. ठीक है. So even WHO has defined mental health. So what does WHO says? WHO says that mental health is a state of well-being in which every individual realizes their own potential, and they can cope with the normal stresses of life, they can work productively, and is able to contribute to their community. So this is what the definition of WHO. So ये definition even आप अगर मान लो कोई direct question आ जाता है GS1 में, वहीं पे probability है पूछे जाने की, तो आप ये WHO की definition कोड कर सकते हो. ठीक है, जो मैंने अभी भी बोला उसको डिट्टो कोड कर सकते हो. सो WHO ने emphasize किया है that आपकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. नाउ अ डेज एटलीस्ट पीपल आर मोर एंड मोर बिकमिंग डिप्रेसिव, लॉट ऑफ एंजाइटी दे आर फेसिंग, लॉट ऑफ स्ट्रेस दे आर फेसिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट, इवन आप अपना एग्जाम्पल लो, मेनी ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आई नो you all must be facing certain type of issues with you might be struggling with competition, you might be very upset with your failures, you might be thinking कि हाँ भाई अब मान लो किसी ने
4-5 अटैम्प्ट्स दे लिए, दे हैव नॉट सक्सीडेड इन दैम, दे हैव नॉट इवन क्लियर्ड प्रीलिम्स. होता है ना बहुत बार, बहुत लोगों का होता है 4-5 अटैम्प्ट्स में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है. मेरी मेरी एक फ्रेंड है, शी हैज़ गिवन 5 अटैम्प्ट्स, शी कुड नॉट क्लियर इवन प्रीलिम्स. तो इट इज़ नॉट कि उसने पढ़ा नहीं, इट इज़ जस्ट दैट देयर आर मैनी लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक हाउ शी इज़ एबल टू कोप विद द स्ट्रेस. जैसे कि उसने मुझे बताया कि if she is going to give the exam, she feels a lot of anxiety that she couldn't handle herself. आप सोचो कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप खुद को हैंडल ही नहीं कर सकते, तो आप पेपर कैसे हैंडल करोगे? कैन यू इमेजिन? तो वो पेपर हैंडल करने की बात तो बहुत बाद में आती है. जब पेपर सामने आ जाता है, शी बिकम्स टू मच रेस्टलेस एंड फिर उसको बहुत इशू होता है. तो इसलिए फिर वो ऑब्वियसली आंसर्स ठीक से मार्क नहीं कर पाओगे ना आप अपना. आप क्योंकि इशू क्या है यहाँ पे इशू है मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है आपकी. मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश किया है, हेल्प, मतलब इवन आई हैव गॉन थ्रू मैनी मोर ऑफ लाइक a lot. I have also gone through many things, but I know certain kind of things that I'm very clear with my life. As someone was also asking that how many attempts you have given, I will clarify this in the end of this video as well. But yes, I do have a clarity that life is not at all about your so called success, जिसे आप कहते हो एग्ज़ाम क्लियर करना. मेरे लिए लाइफ वो नहीं है. मेरे लिए लाइफ इज़ सॉर्ट ऑफ लिविंग इट. जो भी आप कर रहे हो बस खुशी से करो. डोंट फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम एनी बडी. अब मुझे तो आदत हो चुकी है बिकॉज आई हैव फेस्ड बहुत सारे फेलियर्स, सो आई डू नॉट और फिर कुछ चीज़ें मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा रुख चले गया, तो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे बहुत हेल्प किया है. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एंड आई जस्ट अंडरस्टूड दैट जस्ट लिव एट पीस. लाइफ शुड बी इक्वल्स टू पीस. आई थिंक तभी आप उसे क्वालिटी लाइफ कह सकते हो. ठीक है. अच्छा, आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक बाय द वे. सो इट वॉज जस्ट टू टेल यू दैट वॉट इज़ ऑल हैपनिंग एंड वॉट इज़ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज़ एवरीथिंग which you must be experiencing as well, and whether your mental health is okay or not, you have to just check on it. And if your mental health is not okay, then you will have to face even a lot more issues than you are facing right now. So first work on that. Okay. अच्छा, चलो आगे बढ़ते. सो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि कैसे स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. बट देन यहाँ पे एक और जो पॉइंट ऑफ कंसर्न आता है कि क्या दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स. क्या वो इस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ यही प्रॉब्लम है? क्या ये प्रॉब्लम नहीं है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं दे आर नॉट एबल टू हेल्प द स्टूडेंट्स? क्या ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो इवन हेल्प करना तो दूर की बात है, दे आर बिल्डिंग द स्ट्रेस ऑन देम? कॉन्टीन्यूअस टेस्ट होना, उसमें कंपैरिजन्स होना, उसमें नंबर ज़्यादा लाने का प्रेशर होना, फिर ऊपर से प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, ऊपर से प्रेशर ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, राइट? सो दिस ईच एंड एवरीथिंग इज़ contributing to these kind of instances which we are witnessing these days. It is not just the student who is not able to cope with this, but it is we as a society who are not able to help the student to cope with that. So this is the basic idea of this article. Even then the article says that it is the government institutions, the government itself who is not able to help the student. How? Because जो बजट एलोकेशन है वो मेंटल हेल्थ के लिए, अगर आपको पता होगा, इट इज़ जस्ट 1% ऑफ GDP. सो आप सोचो, मेंटल हेल्थ इज़ बिकमिंग काइंड ऑफ एपिडेमिक एंड यू आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू इट जस्ट 1% ऑफ GDP. तो ये फिर वो कहते हैं कि भाई इनकी भी गलती है. तो ये सिर्फ उनकी गलती नहीं है, तो ये गलती एज अ सोसाइटी हमारी है, एज अ पूरा सिस्टम, हमारी पूरे सिस्टम की गलती है, इंस्टीट्यूशंस की गलती है, दैट वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट. दे आर नॉट एबल टू वर्क एट पीस. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ लाइफ, इट हैपन्स, एवरीबडी कैन नॉट सक्सीड एंड just life must go on. Life is not about these success, failures and everything. Life is about living it, how graciously you are able to handle each and everything which is coming to you.
दैट इज़ लाइफ। तो वो चीज़, वो एस्पेक्ट उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। आप सोचो स्कूल, कितने स्कूल्स में होता है कि इस तरीके की एक अलग डायमेंशन उन्हें सिखाई जाए, एक लाइफ को देखने का नज़रिया उन्हें बताया जाए। कितने स्कूल्स में होता है। आप में से खुद के कितने स्कूल्स में हुआ होगा कि आपको अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ एक अलग एंगल, एक अलग पर्सपेक्टिव लाइफ के टुवर्ड्स दिखाया गया हो? नहीं होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट बीइंग इवन टॉट टू स्टूडेंट्स। तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सडनली इस सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे? आपको उन्हें तैयार करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उनके रूट्स तैयार करने पड़ेंगे। दैट इज़ इन द स्कूल्स इटसेल्फ। इन द स्कूल्स आई फील एटलीस्ट कि एटलीस्ट एक अलॉटेड वीकली, एक बार ही मान लो, वीक में एक बार ही एटलीस्ट एक पीरियड होना चाहिए। आप पीटी के लिए तो अलॉट करते हो, लेकिन आप मेंटल हेल्थ के लिए अलॉट नहीं कर रहे हो। तो मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, या फिर मैं कहूँगी इवन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, एक पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चों को सिखाया जाए दैट हाउ टू कोप विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड व्हाट इज़ लाइफ अबाउट। सो टू गिव द स्टूडेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव्स सो दैट he or she does not restricts himself or herself to these kind of things. And then also there are needs of counseling reforms in these institutions where they can have certain kind of system in their in each and every institution जहाँ पे उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बेटर उनका डेवलपमेंट किया जाए। देन अगर अब आप सोचो इस तरीके के इश्यूज़ से अगर आप डील कर रहे हो, है ना, अगर 60 to 65% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ यूथ, राइट। अब इनमें से अगर आधे लोग भी सफ़र कर रहे हैं, आप इससे तो ज़्यादा ही सफ़र कर रहे हैं, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। तो क्या होगा? व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट? अगर मेंटल हेल्थ से कोई इंसान सफ़र कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी विल बी लो। प्रोडक्टिविटी लो होगी तो क्या होगा? आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। सो ये एक सीधा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। देन आप देखो, हम अपना हमेशा बात करते रहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वो जो डेमोग्राफिक विंडो है उसका हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे। इंस्टीड इट में बिकम अ डेमोग्राफिक डिज़ास्टर, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मेंटल हेल्थ के ट्रैप में फॉल करते जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के जाल में फंसते जाएंगे। नॉट जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बट डिस्ट्रेस एंड मैनी मोर थिंग्स। तो वो क्या होगा उससे? ऑब्वियसली उससे वो एक्चुअली बर्डन बन जाएंगे ना इंस्टीड ऑफ, और फिर उनको और ज़्यादा उस चीज़ का कि भाई मैं क्या होता है, मैं इंडिविजुअली हम क्या फ़ील करते हैं, यार वी आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब, देन वी हैव बिकम अ बर्डन ऑन आवर फैमिली। तो उनको और ज़्यादा अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंड दैट मे लीड टू दीज काइंड ऑफ इंस्टेंसेस वेयर पीपल कमिट सुसाइड। So we don't want to reach there, right? We want to reap our demographic window. Then apart from that, अगर हम social impacts इसका देखें तो क्या हो सकते हैं? अगर एक person is suffering from mental health, they will have low self confidence अगर कम होगा तो success, जिसे हम कहते हैं so called success, I would not call that success हालांकि, बट उस वहाँ पे भी सक्सेस के चांस कम होंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी लाइफ में भी हैप्पीली सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इवन सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। फॉरगेट अबाउट हैप्पीनेस। तो वो एक लाइफ का जो मीनिंग है वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट। देन आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे। एवरीबडी अराउंड यू विल बी फीलिंग डिस्ट्रेसफुल बिकॉज यू आर फीलिंग सच, राइट। अब होता है ना, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यू आर फीलिंग सैड, यू आर नॉट ओके, देन योर फैमिली विल ऑल्सो फील लाइक व्हाट हैज़ हैपेंड टू माई चाइल्ड, राइट। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में डेवलप, तो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन, right? We need a happy and developed India, not just developed India. We need to balance these things. Happiness is equally important to development. So और development एक तरीके से कहें तो ये symbiotic भी हैं. Happiness will lead to development as well. जितना ज़्यादा happy आपकी population है, उतना ही ज़्यादा productivity होगी, उतना ही अच्छे से development हो पाएगा. जितना ज़्यादा development होगा, people will have more aspirations, more incomes, more per capita income and everything, right? तो ये ज़रूरी है। बट जैसा कि हमने कहा कि वी आर जस्ट स्पेंडिंग 1% ऑफ GDP, तो इस तरीके से तो ये बहुत मुश्किल है। वी हैव टू इंक्रीज़ आवर बजट एलोकेशन फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कम से कम 70 से 90% जो लोग हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, दे आर नॉट रिसीविंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट।
सो इतने लोग तो ट्रीटमेंट रिसीव ही नहीं कर पाते हैं. अब आपको पता है, मैंने बताया इनिशियली कि वाई दे आर, आप खुद ही सोचो, आपको पता है कि देयर इज़ काइंड ऑफ pressure, there is kind of stigma where if you will go to a psychiatrist then people will treat you like a person कि भाई आप पागल हो गए हो, कहते हैं ना. इवन क्या ही बोलूँ, मतलब मैं आई डोंट वांट टू स्पीक, बट हाँ कि ऐसा होता है, आई हैव एक्सपीरियंस इट. तो इस वजह से पीपल आर नॉट इवन गेटिंग द हेल्प विच इज़ रिक्वायर्ड. देन जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे, अब आप सोचो सिर्फ 0.75 साइकेट्रिस्ट आर देयर पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन, जबकि WHO रिकमेंड करता है एटलीस्ट 3. तो 3 रिकमेंड कर रहे हैं, 1 भी नहीं है हमारे पास. तो दैट्स वाई पीपल आर नॉट ऑल्सो एबल टू अप्रोच. मे बी हो सकता है हो अवेलेबल, लेकिन वो उनकी रीच में अवेलेबल ना हो. आप सोचो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको लगता है इस टाइप की चीज़ें कहीं मिलेंगी. इवन वहाँ पे स्टिग्मा ज़्यादा होता है इन चीज़ों का, आपको पता है. तो दीज काइंड ऑफ हेल्थ एक्सेस जो है, मेंटल हेल्थ एक्सेस, ये आपको अर्बन एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा. यू विल नॉट बी हैविंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़. तो ये जो डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड, ये भी ब्रिज होना चाहिए. और यहाँ पे रूरल एरियाज़ में अवेयरनेस फैलाने की इसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही हालत ख़राब है. सो यही है, वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दिस. एंड वी होप दैट दिस, ये जो मेंटल हेल्थ को अंडर आर्टिकल 21 कंसीडर किया है एज अ फंडामेंटल राइट, this should not just become a rhetoric, rather it should bring some kind of improvement in this system. We have to develop the kind of support system for each and every student, jahan pe bhi, whether it's colleges, whether it's schools, we have to develop that support system for them, so that they do not feel that isolation, they do not feel that कि वो अकेले हैं. तो we have to provide them that support. And at the end, right to life must include a healthy mind. The court has given voice to generation of students who have too often been silenced by despair. So yes, this is a landmark judgment. And at last, I would only say that if you are facing any kind of issues, I would just tell you कि मतलब कहना आसान है, ऐसा आप कह सकते हो, बट आई थिंक एटलीस्ट नॉट फॉर मी, बिकॉज जैसा कि किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने अटैम्प्ट्स, सो आई हैव गिवन 5 अटैम्प्ट्स, एक्चुअली 6 अटैम्प्ट्स. देर आर सर्टेन इशूज़ की आई वाज सेइंग 5, बट ठीक है, आई हैव गिवन एक्चुअली 6 अटैम्प्ट्स. एंड 2 बार मैंने प्री निकाला है. एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर मेंस. सो दिस इज़ माई हिस्ट्री अबाउट UPSC. एंड a lot of failures I had to face, of course. 6 attempts means 6 failures, you can say. Only 2 success, that is also in the form of prelims. But I do not feel dejected at all. I feel that I've learned a lot through this journey. I have more, like, if I would not have gone, I would not have come into this preparation, I would have lost a lot of, I would not have learned that kind of knowledge जो भी मुझे मिली है. मुझे लगता है वो बहुत ही प्रेशियस है. मेरा जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना, सब चीज़ों को समझना, लाइफ को एक अलग एंगल से देखना, everything has come because of this. And I have a lot of gratitude towards UPSC. I would say I've learned a lot. I feel like an informed citizen. I feel like I know things, what is happening around, why it is, not just what is, I understand why it is happening around. So I have that kind of gratitude towards it. I do not have any regrets, and I also ask you to have the same attitude. Whatever you do, just do not expect anything out of it. Just always have a positive attitude towards life. And I know it's difficult to feel, but take care. You will eventually realize that. So this is it. Thank you so much. And you can subscribe my channel if you want, and like my video if you want so. Thank you.